Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today in this class of GK, we are going to learn about our environment. So, basically, what is environment? Environment is anything which surrounds us. Okay. So, the definition of environment can be defined as sum total of all living and non-living elements. जिसमें सारे living और non-living elements रहते हैं. So, that thing is known as your environment, where the people lives. Okay. And the next or we can say that, in other words, environment refers to those surroundings that surrounds living beings from all sides and affects their lives too. ओके हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज सराउंडिंग दैट सराउंड्स लिविंग बींग्स. ओके एनवायरनमेंट्स आर दोज सराउंडिंग जो हमें सराउंड करती है लिविंग बींग्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अफेक्ट देयर लाइफ्स टू. और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें वो इन्वायरमेंट अफेक्ट भी करता है, वो सराउंडिंग्स भी अफेक्ट करती हैं. ओके सो the environment in which we live, breathe, need to be protected. All of us have to put in our efforts to protect it. So हमें कहीं ना कहीं हमारे efforts लगाने चाहिए to protect it, because our environment has to be healthy, just because so that we can keep ourselves healthy and wealthy. Okay, so इसलिए हमारा जो environment है वो बिल्कुल clean होना चाहिए. It should be healthy for us to live in. Okay, so here are some of the things that we can do. In this way we can keep our environment clean and tidy. Okay, so these are some of the ways which are given here, which will help us to make our environment clean, and the place, it will be a healthy place for us to live. Okay, so what's the first picture is showing that do not use soap or toothpaste and fresh water streams as they pollute it. ओके तो हमें कभी भी कोई भी वाटर बॉडी हुई, जैसे लेक, रिवर और एनीथिंग, ठीक है, तो हमें वहाँ पे टूथपेस्ट और सोप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ सच प्रोडक्ट्स विच कैन pollute the water body or which can pollute the that thing. Okay, so we should not use such substance or any material which could pollute the water of any water body, जो कि पानी गंदा कर दे उस नदी का या उस तालाब का. तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ थिंग्स लाइक सोप और टूथपेस्ट. Now the next we have is save energy by turning off the lights when no one is in the room. हमें क्या करना चाहिए. द सेकेंड वे सेज दैट टू कीप आर एनवायरमेंट हेल्दी, दैट वी शुड सेव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेव करना चाहिए. जब भी कोई रूम में नहीं होता है, देन वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस. ओके, सो दैट इन दिस वे वी कैन सेव द energy. In the third picture it is showing that avoid using plastic polythene bags as they are not biodegradable thing. Okay, हमें plastic polythenes का use नहीं करना चाहिए as they are not biodegradable thing. And here what is biodegradable? Biodegradable, it is the breaking down of organic matter by microorganisms such as bacteria, fungi or the ability to get decomposed. मतलब जो plastic polythenes रहती हैं वो easily decompose नहीं होती हैं. Okay, and what is decomposing here? Decomposing means break down. Okay, ये जो products होते हैं वो बहुत जल्दी से decompose नहीं होते हैं plastics, तो हमें इनका use नहीं करना चाहिए. Okay, now the next way is that never harm or tease animals or plants. हमें किसी भी animals को ना tease करना चाहिए, कुछ disturb नहीं करना चाहिए उन्हें, और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए. So in this way we can keep our environment healthy and a place where we can all live. Now the next is give away waste glass, aluminum, प्लास्टिक कैंस, कार्डबोर्ड एंड पेपर टू रिसाइकल. हमें जो भी वेस्ट ग्लास रहते हैं, हमारे एल्यूमिनियम्स की जो केन्स होती हैं, कैंस होती हैं, कार्डबोर्ड रहते हैं, उन्हें हमें सब रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज ओके सो वी शुड गिव अवे द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल, जिनका हम रिसाइकल कर सकें, मतलब इन्हें कहीं ना कहीं हम वापस से यूज़ कर सकें. ओके, सो एल्यूमिनियम और जो प्लास्टिक कैंस होती हैं वो रिसाइकल कैसे होती हैं? दे आर बीइंग मेल्टेड. ओके, इन्हें हम मेल्ट करते हैं, जो भी रिसाइकल करते हैं इन्हें. सो दे पीपल मेल्ट दीज कैंस एंड इट टेक्स ओनली 3 months to
गो अंडर दिस प्रोसेस, और ये रिसाइकलिंग होने में इन्हें सिर्फ 3 महीने लगते हैं प्लास्टिक कैंस को, ओके, और जो एल्यूमिनियम कैंस रहती है. नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट इट इज़ शोइंग, रिड्यूस वेस्ट एंड सेलेक्ट दोज प्रोडक्ट दैट कैन बी रिपेयर्ड और रिसाइकल. हमें सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रिसाइकल हो सके, जो कि रिपेयर हो सके. ओके, सो व्हाट आर द हेयर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फूड स्क्रैप्स, ठीक है, जो भी खाने से रिलेटेड स्क्रैप हो, आपका ओल्ड क्लोथिंग जैसे कि जीन्स जो आप नहीं पहनते हो वो भी रिसाइकिल हो सकती है, वो भी रिपेयर होकर आप उसे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं. न्यूज़पेपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल, ओल्ड जार्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट. तो हम इन्हें इन प्रोडक्ट्स को जो है ईजिली रिसाइकल कर सकते हैं. ओके, और हमें जो वेस्ट रहता है, ओके, वेस्ट मटेरियल्स जो रहता है या वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमें कम से कम करना चाहिए. ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर what it is showing, turn the volume of the speaker down as they cause pollution. Okay, so you know what a pollution is. So in this picture what it says that we should reduce the volume of the speaker as it create noise pollution. Okay, so noise pollution को कम करने के लिए हमें जो है स्पीकर की वॉल्यूम का कम करना ज़रूरी है. ओके, जस्ट बिकॉज जो नॉइज़ पोल्यूशन है जिसके कारण हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. ओके, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस टू बी इन सच लाउड म्यूज़िक और सच लाउड साउंड्स. ओके, इट कैन कॉज स्ट्रेस, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है इसके कारण. पुअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अगर किसी भी म्यूज़िक में आप जिस भी प्लेस पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो आप उसके कारण कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों पे, एंड कैन क्रिएट इंटरनल प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बॉडी, और इसके कारण आपको इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है विच विल बी वेरी dangerous for you also. It is very beneficial, it is very important for us to keep them maintain in a low pace. Okay, now the next we have is wherever you move out for a picnic, put your waste and rubbish in the dustbin. जब भी आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं और you go for some trekking or you go some for any place, कहीं भी आप कोई भी शॉप पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, तो आपको आपका जो वेस्ट है वो आपको हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए. ओके, सो यू शुड नॉट फॉरगेट टू यूज़ दैट डस्टबिन फॉर पुटिंग आउट योर वेस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज़ डू नॉट वेस्ट थिंग, कंज्यूम ओनली एज मच एज यू वॉन्ट. हमें कोई भी चीज़ों का वेस्ट नहीं करना चाहिए. ईदर इट विल बी ऑफ फूड और ईदर इट कुड बी ऑफ एनी थिंग. ओके, सो यू शुड नॉट वेस्ट दैट थिंग. ओके, आपको जो भी चीज़ें लगे आपको उतनी ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट वेस्ट दैट बाय टेकिंग इट इन एक्सेसिव अमाउंट. ओके, सो this is all for today. These are the things that we can kept in our mind, and that we can even follow this in our daily life to keep our environment healthy, and this is how we can protect our environment. Okay, so this is all for today. Thank you, children.